Alright guys, happy Krishna Janmashtami. Jai Shri Krishna, Jai Ho Saraswati ji. So it's 2:06 p.m. and I woke up right now. Let's start this day, this very good and auspicious day with some good shlok from Bhagavad Gita. So it is Karmani Vadikaraste Ma Phaleshu Kadachana Ma Karmafal Heturbhur Ma Te Sango Svakarmani. I don't know how to say it correctly, anyways, I will learn it. But let's read the meaning. It says, you have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities, or never be attached to doing your duty. Alright, so the Lord advised Arjun not to be inactive, but that he performs his duty without being attached to the result. Arjun was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads to path of salvation. Fighting as the matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. Also, and because he himself is telling Arjun to fight, he is Shri Krishna, he himself is telling Arjun to fight, Arjun has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. So very beautifully said by Lord Krishna that we should focus on doing our duty, we should focus on doing our karma rather than focusing or getting attached to the result. So basically, let's do our karma and let Lord give us the result, because that's the way how things work. Okay, so I just woke up. I told you it's 2:10 and we'll quickly keep this and we'll go and we'll get ready and come back as soon as possible and then start studying. Alright, so I have made my to-do list for today and I have kept physics का लेक्चर सर्कुलर मोशन का आज का जो है वो, फिर उसके बाद बायो का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का एक लेक्चर देखूंगी, फिर रिवीजन करूंगी उसका, फिर मूल कॉन्सेप्ट जो है उसका अभी तक जितना भी मैंने नोट्स बनाया उसका रिवीजन करूंगी, केमिस्ट्री की डीपीपीज जो बाकी है वो करूंगी, केमिस्ट्री का एक और लेक्चर 2 लेक्चर और देखना है, लेक्चर इन द सेंस पीपीटी देखूंगी, पीपीटी से नोट्स बना लूँगी मूल कॉन्सेप्ट के, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी आता है वो चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, जहाँ पे डाउट होगा सिर्फ वही लेक्चर देखूंगी, और मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर देखना है एक, और NLM का रिवीजन करना है. तो या दैट्स इट. एंड हाँ, अगर टाइम मिला तो एक NLM का भी लेक्चर देख लूँगी और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का एक और लेक्चर देख लूँगी. एंड हियर आई विल राइट कि कितने क्वेश्चंस किए बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और आज क्वेश्चंस करूँगी. I've also brought my food here, so let's start studying and let's have some food. Abhi I don't have my laptop with me, so I will quickly revise these notes in 10 minutes and then we'll do other things. Okay, so I'm done with revising the notes of breathing and exchange. इतने रिवाइज कर लिए मैंने नोट्स, और अब हम इसी का लेक्चर देख लेते हैं क्योंकि फ्लो में है ये वाला चैप्टर, तो इसका लेक्चर देख लेते हैं. और अभी हो रहा है 3:25 होने वाला है. अरे यार ये दिखता ही नहीं है यार इसमें. ओके 3:25 होने वाला है, तो लेट्स डू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का लेक्चर. उसके पहले see this, wait 259 days guys, 259 days are left, 8 hours 36 minutes. okay, कोई बात नहीं, let's utilize each and every minute, every second and not waste it. Let's quickly see the lecture and then do something else क्या बहुत सारा है करने को. इंसान ही वही है जो और इम्प्रूव करता जाए एवरी डे, अपनी गलतियों को देखे, कमियों को देखे आगे बढ़ता जाए. So this lecture is done. 1 hour 40
26 मिनट्स हो गए पढ़ते पढ़ते। और आज का लेक्चर मेरे को ऐसे डिफ़िकल्ट लगा थोड़ा सा, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला चीज़ पढ़ा हमने। डिफ़िकल्ट एज इन कि ज़्यादा ही फैक्ट्स और सब याद करने का है इसमें। और ठीक है, 1-2 बार रीड करेंगे नोट्स को ये वाले पार्ट के लिए, तो आई गेस आ जाएगा समझ। कंसेप्चुअली पढ़ाया मैम ने बहुत अच्छे से, तो इट वाज गुड। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इसको रिवाइज़ करने का, बट रिवाइज़ करना पड़ेगा, बट अभी नहीं करेंगे। अभी हम एक और लेक्चर देखेंगे और फिर पहले तो हम टिक कर लेते हैं। ओके, सो बायोलॉजी लेक्चर डन। अभी इसके डीपीपी वगैरह बाकी है, तो पहले मैं रिवाइज़ जब कर लूँगी ना उसके बाद डीपीपी करूँगी। क्या करें, पहले रिवाइज़ कर ले क्या? ओके, लेट्स रिवाइज़, और रिवाइज़ करके ख़त्म करते हैं ये, ताकि अपन मेंटली फ्री हो जाए। ऑल्सो ऑलराइट, मैंने 15 मिनट्स का एक ब्रेक लिया था। अब वापस हम स्टार्ट करते हैं, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का रिविजन स्टार्ट करते हैं। पोमोडोरो का टाइमर भी ऑन कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का रिविजन करते हैं, चलिए। सो रिविजन ऑफ दिस क्लास नोट्स डन। डीपीपी भी कर लिए मैंने इस लेक्चर की, इजी क्वेश्चंस थे, तो ठीक है। सो आई हैव डन दिस। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कर्व, ये बार बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। एंड इवन दिस टेबल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी, क्या बोलते हैं, मतलब डेटा है ना इसमें, तो इट कैन इवेपोरेट फ्रॉम द ब्रेन वेरी ईजली। सो आई नीड टू रिवाइज दिस फ्रीक्वेंटली एज वेल एज दिस थिंग। कहाँ गया ये? और जो ये वाला डेटा दिया है कि 100 ml ऑक्सीजन में 20 ml 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन रहती है, ये वाला जो डेटा है ना, वो भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाऊंगी। सो दिस इज डन। क्या टिक करना है? हाँ, डीपीपी हो गई है। एंड यस, रिविजन ऑफ ब्रीदिंग ऑल्सो डन। तो आज का हमारा बेसिकली बायो का लेक्चर एंड ऑल पूरा हो गया। अब क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस अभी 10 क्वेश्चंस थे इसमें। देयर वर 10 क्वेश्चंस, आई हैव टू डू मोर। लेट मी हैव पॉज द टाइमर एंड आई विल गो अप एंड आई विल फिल द बॉटल एंड आई विल कम डाउन। ओके, सो आई एम बैक बनाना खाते खाते। अभी करने का है, इतना सारा करने का है अभी, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। सो हाँ, एक और चीज़, आज पता नहीं क्यों हमारी केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल होगी और सर ने सर्कुलर मोशन की 2 क्लासेस अपलोड कर दी, तो सर्कुलर मोशन का एक और लेक्चर देखना पड़ेगा। 2 लेक्चर हो गए सर्कुलर मोशन के। ये 2 घंटे का है, 2 घंटे 20 मिनट, और ये 1 hour 35 minutes का है। सो पहले हम ये देख लेते हैं सर्कुलर मोशन के लेक्चर्स। यहाँ पे लेक्चर देख रही थी और 1 घंटा हो गया लेक्चर देखते हुए, 1 hour 8 minutes हो गया, बट मुझे अपना बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्यों मेरा मन नहीं हो रहा। यहाँ पे सर क्वेश्चंस करने को बोला है ये सारे, बट आई डोंट वांट टू डू, मुझे मन नहीं हो रहा करने का, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि व्हाट इज़ फोर्सिंग अस टू डू द क्वेश्चन इज दिस थिंग। सिर्फ इतना टाइम बचा है, अब जो करना है ना इतने टाइम में ही करना है, अपन को इतने टाइम को यूटिलाइज करना है। कम ऑन, वी हैव टू डू, कम ऑन, लेट्स कीप ऑन गोइंग। सो दिस लेक्चर इज़ डन। 2 घंटे का था, बहुत टाइम लग गया करने में, तो और ये थोड़ा सा टफ था लेक्चर, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया मुझे करने में।
सो आई हैव मेड द नोट्स एज वेल। बहुत सारा हुआ है आज, तो रिवाइज़ करना पड़ेगा इसको। तो हम सर्कुलर मोशन के भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और इसको रिवाइज़ करेंगे, बट अभी तुरंत नहीं, बिकॉज अभी एकदम दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर देखा है ना। ऑल्सो आई हैव हैड माई डिनर एंड तो अब अपन को पढ़ना है। 10:48 हो रहा है ना अभी, अब सुबह तक अपन को पढ़ना ही है। एनीवेज सो पढ़ते पढ़ते हो गए 5 hours 42 minutes। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था दोपहर में 3 बजे आई गेस, और अभी बज रहा है 11 बजने को आ रहा है, और अभी तक सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई की है। कोई बात नहीं, इसको बंद करके रखते हैं और टू डू लिस्ट में चेक करते हैं कितना है, क्या बाकी है। मेरा चश्मा गिर गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, फिज़िक्स का लेक्चर हो गया सर्कुलर मोशन का। ओके, तो कल संडे है तो कल एक भी लेक्चर नहीं है। तो जो ये वाला सर्कुलर मोशन है ये आई विल डू इट टुमारो बिकॉज टुमारो इज संडे। तो अभी फिज़िक्स का लेक्चर अभी तो मैं रिवाइज नहीं कर रही है,